Well, students, good evening to all of you. So, guys, today we will discuss our paper 3 of MEd first semester, right? The name of paper is Educational Studies. So, today I am discussing the paper directly from the PDF file, directly from the notes. I have already given you the notes 4 months before, right? So, I'll discuss from the notes. Side by side, I have opened a one PPT also. I have made a PPT, okay, to clear your some of the concept. Okay, so side by side we will learn from the PPT also, and directly we will learn from the notes. Okay, so first see the syllabus. It is a very easy paper, but it is a lengthy paper, right? So this paper we have already covered in the B.Ed class also, right? In your syllabus, the second paper of the B.Ed, contemporary Indian and education, राइट उसमें ये सारा का सारा ऑलमोस्ट 60-70 पेपर्स आर कवरिंग राइट टॉपिक्स आर कवरिंग you can see that unit 1 we talk about education, meaning and nature, concept, agencies, right? वो need and importance, national and global perspective. Then education as a phenomena, practice and field of study. And when we talk about unit 2 में you have to talk about structure of education, structure at the central level, at the district level, or at the village level. Okay, at the central level, right? Ministry of Education, right? In the central government, then state level, then village level. Okay, this one. And next is system of education, higher education, secondary, elementary, and technical education. Okay, fourth topic under unit 2, need and importance and significance of distance education and open learning system in national and global perspective, and educational bodies, right? क्या है educational bodies? Okay, UNESCO, UGC, NUPA, NIOS, RCI, NCERT, NCTE, CBSE, SCRT, and DIET. Okay, matlab these all are related with your education, with your teacher education, with your education system. Okay, these all the educational bodies, right? It's a very much easy. And unit 3 is, when we talk about the unit 3 is talking about, one topic is talking about the, ये देखो guys, constitutional provisions, right? Constitutional provisions and acts with respect to education. ये 4 एक्ट हैं, ये चारों के चारों एक्ट्स, ओके, दैट बिलोंग्स टू दी डिसेबल सेक्शन, राइट? इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट? वेयर वी टॉक अबाउट नॉर्मल स्टूडेंट एंड द डिसेबल स्टूडेंट, दे कैन लर्न साइमल्टेनियसली अंडर ए वन रूफ. ओके, सो डिसेबल पर्सन के लिए ये सारे एक्ट हैं, दे आर फॉर द डिसेबिलिटी एक्ट है. ओके, ये देखो, पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, राइट ऑफ ए पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, आरटीआई एक्ट, ये तो सिंपल है बहुत हमारा, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट. ओके, और 6 टॉपिक देखो, ये सबसे इजी है, ये उससे भी इजी है, 5th वन से भी. ओके, 6 टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट नेशनल प्रोग्राम्स और स्कीम्स इन एजुकेशन, राइट? कौन कौन सी स्कीम है? देखो, मिड डे मील, राइट? एसएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्व शिक्षा अभियान, राइट? रमसा, रूसा, आईईडीएसएस, आईईडीसी, समग्र शिक्षा अभियान, साक्षर भारत. तो ये भी अब आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, एसएसए क्वेश्चंस आ जाता होता है, एसएसए और रमसा में डिफरेंस क्या है? ओके, ये इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, आईईडीएसएस, राइट? देन यूनिट 4 इज नेशनल इश्यूज इन एजुकेशन, यूईई. याद करो, ये बीएड में भी हमने टॉपिक किया हुआ है. ओके, और काफी बार आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. आपके ना इसमें से कुछ टॉपिक्स ना पेपर 2 में भी कवर हो रहे हैं आपके. जो पेपर 2 है ना आपका, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन, उसमें भी हो रहे हैं, राइट?
globalizations of education, liberalizations of education. Then national concern in education. Under this, expansion of a secondary and higher education, issue related to equity, equality and quality of education. देखो इसमें फर्क है, ये बहुत बार क्वेश्चंस आता है, शॉर्ट में आता है ये वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी. ओके, एजुकेशन ऑफ ए डिसएडवांटेज, और लास्ट है क्वालिटी इश्यूज इन टीचर एजुकेशन. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, 4 ही लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं, 4 ही शॉर्ट करने हैं. ओके, बिकॉज इट इज ए एग्जाम प्रेपरेशन क्लास, तो मैं आज आपको टिप्स भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि वो आप कर लें तो आपका पेपर बहुत बढ़िया अटेम्प्ट हो सकता है. ओके गाइज, आप ये देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिट 1 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, आई विल सजेस्ट यू गो फॉर टॉपिक 1. Topic 1 is education, है ना. The questions would come, either the questions would come on agencies of education, right? और mostly अगर हम देखें लास्ट ईयर के हिसाब से, क्वेश्चन इज कमिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, राइट? ये लास्ट वाला आ रहा है, तो ये सिंपल है एज कंपेयर टू ये नीचे वाले तीनों से. ओके, सो आई विल सजेस्ट गो फॉर यूनिट टॉपिक 1. ओके, यूनिट 1 का टॉपिक 1 लॉन्ग के लिए. और यूनिट 2 की अगर बात करें तो देन गाइज आई विल सजेस्ट यू गो फॉर दिस एजुकेशनल बॉडीज. ये सारी कर लो, बड़ी इजी है, बहुत ही इजी है ये, राइट? वाई इनको ना आप स्ट्रेच कर सकते हो. देखो क्वेश्चंस आ जाता है. ओके, यूनिट 2 में भी क्वेश्चंस आपको आ जाएगा. एक्सप्लेन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर एट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक एंड विलेज लेवल. और इधर ये भी आ जाएगा डिस्कस द एजुकेशनल बॉडीज. बट ना देखो, इन दोनों में से क्या है, मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यू कैन स्ट्रेच, है ना, क्योंकि आपको पेजेस भी भरने हैं, 7 पेजेस भी आपको भरने हैं. आधे घंटे के अंदर आपको पेपर भी वो खत्म करना है. टाइमिंग्स भी 3 आवर्स हैं आपको, राइट? आधे घंटे के अंदर आपको 7 पेजेस को फिलअप करना है, राइट? तो क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करो जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो. ओके, और द क्वेश्चंस यू कैन स्ट्रेच, द आंसर यू कैन स्ट्रेच, यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स. ओके, सो यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा 4th वन. अगर आपको इजी ये वाला लगता है तो आप ये भी कर सकते हो, राइट? ओके, पर इन माई ओपिनियन, ओके, यू कैन गो फॉर दिस. ओके, अगर ये कर रहे हो तो कंप्लीट करना है आपने इसको, राइट? छोड़ना कुछ भी नहीं है. यूनिट 1 यूनिट 2 हो गया. देन वी टॉक अबाउट द यूनिट 3. यूनिट 3 में आप ये करो सारी की सारी स्कीम्स ऑफ एजुकेशन, राइट? मिड डे मील, SSA सर्व शिक्षा अभियान, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, IEDSS, IEDS, रूसा समग्र शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, राइट? और यूनिट 4 के अंदर ये ऑलरेडी ही है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, राइट? अब देखो गाइज, इनको पूरा आप देखो, राइट? अगर आपके पास पेन है तो ऑलरेडी यू हैव टेकन द प्रिंट आउट, तो यू कैन टिक मार्क, राइट? यूनिट 1 में फर्स्ट लॉन्ग के लिए आप कवर अप ये करो, राइट? यूनिट 2 के लिए ये सारा आप करो, एजुकेशनल बॉडीज. यूनिट 3 के लिए नेशनल प्रोग्राम्स या स्कीम्स इन एजुकेशन करो. और यूनिट 4 के लिए आई विल सजेस्ट दिस, राइट? बाकी बाद में कर लो, यानी कि, राइट? फर्स्ट फॉर द लॉन्ग ना, लॉन्ग के लिए आप कीप इन योर माइंड कि ये मुझे अटेम्प्ट करना है, राइट? बाकियों को भी अटेम्प्ट करो, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस है आपको, वो इट कैन कम फ्रॉम होल ऑफ द सिलेबस, राइट? अब ये देखो लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट ईयर का पेपर है एजुकेशनल स्टडीज. मैंने सारे नोट्स आपको ऐसे ही बना के दिए हुए हैं. at my the no at in the notes, the first page is the syllabus, है ना? second page is the last year paper, and third page starts with solving the last year paper, right? 60 और 70 पेजेस होंगे, उसमें सॉल्व है लास्ट ईयर का पेपर सारा का सारा. फिर उसके बाद आफ्टर 70 पेजेस जो हमारा सिलेबस के जो भी पार्ट हमारा रह गया है, देन वो एडिशनल नोट्स हैं आपके, राइट?
तो नोट्स के अंदर आपको लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व मिल रहा है और सारा पेपर भी कवर अप मिल रहा है। ओके, तो ये लास्ट ईयर का पेपर है। पेपर देखो, कंपलसरी क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से आ गए। ये देखो, एजुकेशन एज फिनोमिना आ गया, एनसीटीई आ गया, राइट, एसएसए आ गया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आ गया। आप ये देखो, ये तीनों तो वहीं से आ गए जो हमने सिलेक्ट किए थे, राइट, एनसीटी, एसएसए एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आ गया यूनिट 4 में से, राइट। ये देखो सिलेबस ही देख लो आप, ये देखो ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आ गया, एसएसए ये देखो इसमें से आ गया, इवन इससे आपका शॉर्ट भी कवर हो गया इस सेक्शन से। ओके, एनसीटी, एनसीटी आपका आ गया एजुकेशनल बॉडीज से, ये रहा एनसीटी, कहां है, ये रहा, ये देखो एनसीटी आ गया ना, एजुकेशनल बॉडीज यूनिट 2 की, राइट। मतलब इस सेक्शन से आपका शॉर्ट भी कवर अप हो रहा है। ओके, लेकिन ये नहीं कि हमें जो रह गया उसको छोड़ देना है, राइट, उसको भी बाद में आप करो, लेकिन इस चीज ऐसे कर लोगे तो ओके, आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, राइट। ये देखो, ये चारों कवर अप हो गए। फिर आ गया इलेबोरेट, फर्स्ट में से आ गया एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस और एजुकेशन एज ए फील्ड ऑफ स्टडी। यूनिट 2 में आ गया डिस्क्राइब द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया और एक्सप्लेन द एजुकेशन स्ट्रक्चर एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। यूनिट 3 में आ गया मेन फीचर ऑफ ए एनसीएफटीई। ठीक है, एनसीएफटीई क्या होती है, ये हमेशा आता है क्वेश्चन, राइट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, और ये देखो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, एक्ट, आरटीई एक्ट आ गया 2010। ये बीएड वाले क्वेश्चंस आ गए, आप देखो ये भी बीएड वाले हैं दोनों ही क्वेश्चंस, इवन ये भी बीएड में आया हुआ है, हायर एजुकेशन, एजुकेशन स्ट्रक्चर भी बीएड में आया हुआ है। और ये एजुकेशन एज ए फील्ड ऑफ स्टडी, वो देखो, इसको आप इलैबोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये देखो, ये भी बीएड वाला आया हुआ है आपका, वही लास्ट पेपर आपका। ये तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आ गया ना एमएड के पेपर में, इसको पूरा आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और नाइन्थ आ गया डिस्कस द इश्यू रिलेटेड टू इक्विटी, इक्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट। तो ये आपका लास्ट ईयर पेपर हो गया, ये भी आपने एक बार देख लिया, ठीक है गाइस। सो हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पेज नंबर 3 से, राइट। फर्स्ट, अंडर द एजुकेशनल स्टडीज वी टॉक अबाउट फिनोमिना बेस्ड लर्निंग, राइट। वो पहला क्वेश्चन था ना, एजुकेशन एज ए फिनोमिना बेस्ड लर्निंग। तो व्हाट इज अ फिनोमिना बेस्ड लर्निंग? फिनोमिना बेस्ड लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर्ड multidisciplinary instructional approach that is based on student inquiry and problem solving. No specific subject is taught, nor is there any preset learning objective. Instead, learner investigated and solved their own questions by applying what subjects are relevant to the problem. तो फिनोमिना बेस्ड लर्निंग हो गया लर्नर बेस्ड, लर्नर सेंटर्ड, राइट। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसीज देखें तो उसमें यही बताया हुआ है स्टार्टिंग के अंदर, राइट। मतलब इसको वी हैव टू मेक द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ओके, तो गाइस मेरा कंसेप्ट है क्लास का कि हर टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ओके, बाकी पढ़ना आपको है सारा। ओके, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता जा रहा हूं वन बाय वन, राइट, और आपको सारा बताता जा रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा एनसीटीई, ठीक है ना, ये लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व हो रहा है। ओके, क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उसमें से सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनसीटीई, एनसीटीई क्या चीज होती है? एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, इसको अंडरस्टैंड करो, यू शुड हैव कॉपी एंड पेन। ओके, सो आप लिखते भी जाओ, मतलब ये मेरा वीडियो है, इसको पॉज करके फिर पीछे करके आप देख सकते हैं इसको, राइट। एनसीटीई देखो क्या चीज होती है, तो ये देखो ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब आप देखो ये क्यों आना है क्वेश्चंस एनसीटीई वाला। अगर हम बात करें कि भाई अगर सीबीएसई है ना, सीबीएसई वाला शॉर्ट में क्यों नहीं आया? वो नहीं आएगा, राइट, एनसीटी ही आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द टीचर एजुकेशन।
You are doing the B.Ed or M.Ed. Okay. What is B.Ed or M.Ed? Guys, B.Ed or M.Ed is a teacher education program. Okay. The apex body of B.Ed, M.Ed or any education program is the NCTE. The head office of NCTE is located at Delhi, right? So all the, you can say that policies, implemented in the teacher education program are decided by the NCTE. Okay, yani what would be the syllabus of B.Ed or M.Ed, right? And what would be the qualifications of appointment as a teacher, as the principal? So it is all decided by the NCTE. So it is the apex body, right? तो ये सारा का सारा आपको डिफाइन करना है एनसीटी क्या चीज है। ये देखो बहुत ही बढ़िया नोट्स बना हुआ है, कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर आपको करवा दिया। ये देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एनसीटी के, वही ऑब्जेक्टिव है लिफ्टमेंट ऑफ द एजुकेशन, राइट। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी एजुकेशन है कैसे डिवाइड है आप ये देखें, राइट। फर्स्ट इज द प्राइमरी एजुकेशन। ओके, मैंने ना पीपीटी एक बनाई है, उसके थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं, ये देखिए, राइट। सबसे पहले हमारी है एमएचआरडी, आजकल इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, मतलब इट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। दिस इज कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, है ना, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, है ना, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, ऐसे ही एजुकेशन मिनिस्ट्री एजुकेशन है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसका भी एक उनका भी एक लीडर होता है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर देयर आर स्कूल, इट कम्स स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ओके, सो सेंट्रल के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इट डील्स विद द स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। और हर स्टेट के अंदर एक मिनिस्टर होगा स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर और एक मिनिस्टर होगा हायर एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्कूल एजुकेशन किसको बोलते हैं और हायर एजुकेशन किसको बोलते हैं, राइट। वापस हमारा इसी पे आ जाओ, एनसीटी पे हमारा जो क्वेश्चन था ये रहा, एनसीटी वाला। ओके, अब आपको पता लग गया स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, वन इज कॉल्ड प्राइमरी एजुकेशन, वन इज कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, मतलब बीइंग टीचर, बीइंग प्रिंसिपल, यू शुड नो इट। ओके गाइज, प्राइमरी एजुकेशन होती है फ्रॉम 1 क्लास टू 8th क्लास। okay, sometime 5th class or 8th class, it comes under the primary education. Okay, matlab mostly it comes under the 1st class to 5th class. Okay, and onward classes jo hoti hain 9th 10th +1 +2, this is called the secondary education. अब जो दोनों हैं प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन, दैट कम्स अंडर द स्कूल एजुकेशन। ओके, तो अप टू +2 तक whatever the educations we are getting or we are giving to the students being teacher and principal, this is called the school education. Okay, after +2 होता है ना BA BSc या BCom first year second year, these classes are called the higher education classes. Okay, अब what would be the structure, ये education system कैसा होगा। Okay, what should be the content of the education system, what should be the content of the primary education, what should be the content of the secondary education, what should be the qualifications of teacher for primary education or for secondary education, guys, it is all decided by the NCTE, National Council for Teacher Education. Okay, got it। तो ये सारा का सारा ये ऑब्जेक्टिव्स, ये देखो, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये सारा का सारा वही चीजें हैं। ओके, यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर इन डिटेल। ओके ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एसएसए। एसएसए क्या चीज है? सर्व शिक्षा अभियान। याद रखना, इट इज कंसर्न्ड विद द प्राइमरी एजुकेशन। अभी मैंने आपको बताया ना, राइट, सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डील्स विद द स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, और जो स्कूल एजुकेशन है, राइट, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, प्राइमरी एजुकेशन होगी 1st क्लास to 8th क्लास और सेकेंडरी एजुकेशन होगी 9th 10th +1 +2। गॉट इट।
अब एसएसए क्या चीज है? एसएसए याद रखना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी एजुकेशन, राइट? सो एसएसए क्या चीज है? एसएसए इज द गवर्नमेंट स्कीम, इट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम. The purpose of this scheme is to enable all the child across the India. Okay, matlab they should be literate, they should go to the school, and their education should be free, right, from the age of a 6 to 14 years of age. यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक जो बच्चा होता है वही प्राइमरी एजुकेशन गेट करते हैं. ओके, तो एसएसए का पर्पस ही यही है कि भाई जितना भी इंडिया के अंदर जो बच्चा है, बिकॉज एजुकेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है. ओके, और सभी गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि चाइल्ड लेबर ये चीजें नहीं होनी चाहिए. हर बच्चा इंडिया का, ओके, वो सारा का सारा फ्रॉम द एज ऑफ ए 6 टू 14 ईयर्स ऑफ एज, उसकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए. इवन उसको खाने का मिड डे मील भी आप देख रहे हो ना. मिड डे मील क्या चीज है? मिड डे मील क्यों स्टार्ट हुई है? ओके, जो स्कूलों में खाना दिया जाता है, स्कूलों में खाना इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जो भी स्लम एरियाज वाले हैं, है ना, आपने देखा होगा उनके जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर करते हैं. ओके, दे आर वर्किंग. तो जब उनसे पूछा गया कि व्हाई यू आर नॉट सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू द स्कूल, तो दे सेड कि अगर ये स्कूल जाएंगे तो हम कमाएंगे कहां से, है ना, इनका रोटी का सिस्टम कौन करेगा? गवर्नमेंट ने क्या किया? मिड डे मील स्टार्ट कर दिया. ओके, कि आपके बच्चों को स्कूलों के अंदर ही खाना खिलाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. गाइस, ये स्कीम है गवर्नमेंट की, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है. और अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे इंडिया में से जितने भी स्टेट्स हैं, किस स्टेट के अंडर एजुकेशन फ्री है? कैन यू टेल मी? ओके, दिल्ली के अंदर फ्री है गाइस, दिल्ली के अंदर. ओके, वहां के गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर आप देखो कितने टॉप लेवल का है, राइट? और बाकी स्टेट्स के अंदर आप ये देखिए, क्या नाम ना, ओके, दे आर नॉट फॉलोइंग इट, है ना, इन चीजों को, जबकि ये राइट है, फंडामेंटल राइट है. ओके, अगर कोई भी स्कूल बच्चों को अगर ये फ्री एजुकेशन और ये चीजें नहीं दे रहा, ओके, अंडर दिस स्कीम, दैट पर्सन कैन गो टू द कोर्ट आल्सो, राइट? पर आपने देखा होगा स्कूल मन मर्जी कर रहे हैं अपने, हाँ, प्राइवेट स्कूल्स के लिए, इवन कि ये इंप्लीमेंट प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी है. ये गवर्नमेंट की स्कीम है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, राइट? तो एसएसए क्या चीज है? ये देखो, ये लिखा भी हुआ है, एसएसए इज ए गवर्नमेंट ऑफ ए इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीवमेंट ऑफ ए यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इन ए टाइम बाउंड मैनर as mandated by 86th amendment of constitutions of India, making free and compulsory education for the children of the age 6 to 14 years. It is a fundamental right. Okay, अब ना आप देखो यहां पे ये वर्ड पढ़ेंगे आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप देखो, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूईई. इवन आपके सिलेबस में भी है यूईई, राइट? एसएसए. इसी के साथ मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है, ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, राइट, यूईई की. ओके, क्योंकि वो उसी के अंदर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. ये देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट? क्योंकि अब इस टॉपिक्स के अंदर आपके काफी सारे टॉपिक्स, काफी सारे कंसेप्ट, इट इज गोइंग टू बी क्लियर्ड. ओके गाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. Okay, no doubt this paper is lengthy, but this is a very informative paper. Okay, and it is a very easy paper. So first we talk about what is universalization of elementary education. इसका मतलब ये है universalization of elementary education का कि every children of the country from the age to 6 to 14 years of age, they should get the education free of cost. Okay, education because it is a fundamental right, free and compulsory education. आर्टिकल 14 भी यही कहता है हमारा, राइट? ये देखो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ए प्रोविजन मीन्स दैट school facilities should be provided to all the children between the age of a 6 to 14. गाइस, ये फंडामेंटल राइट है. 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे का एजुकेशन, हर स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल्स का ये फर्ज है, ये
कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें, और खर्चा सारा वो स्टेट उठाएगी। ओके, जिस जिस स्टेट के अंडर वो स्कूल्स आते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट मीन्स all the children between the age of 6 to 14 must be enrolled, होने चाहिए enrolled। एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ए रिटेंशन, इसका क्या मतलब है? ए चाइल्ड हु ज्वाइंस प्राइमरी स्कूल, ही शुड रिमेन देयर टिल ही और शी कंप्लीट्स ऑल दियर प्राइमरी एजुकेशन, मतलब ड्रॉप आउट ना करे। राइट ये भी मतलब आप कह सकते हैं ड्यूटी है स्कूल की और स्टेट की। राइट तो देखो, बीइंग टीचर हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। अगर बात आती है SSA की, तो ये क्या है? सर्व शिक्षा अभियान है, जिसका पर्पस है टू अचीवमेंट ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्योंकि यूईई क्या चीज है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं, अराउंड 1990 1990 में दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, उस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे कंट्रीज हैं, 8-9 कंट्रीज हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। राइट और उसके बाद उन्होंने एक प्रपोजल एजेंडा को पास किया कि जो एजुकेशन है ये एक फंडामेंटल राइट है। ओके, इंडिया भी उसमें था। ओके, और क्योंकि हमारा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 45 कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है। राइट तो जितने भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, SSA, आगे हम डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट, आगे हम डिस्कस करेंगे मिड डे मील, आगे डिस्कस करेंगे DPEP प्रोग्राम, है ना, फिर IEDSS प्रोग्राम, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम। इन सारों का पर्पस क्या था? टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब कोई भी बच्चा इंडिया का 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। गॉट इट? ये देखो, ये आगे भी वही आ गया। हाँ, अब क्या था इसका पर्पस? इंपॉर्टेंस ऑफ ए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नंबर ए, फर्स्ट, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। बी, फोस्टरिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सी, मैनेजिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एंड लास्ट, क्रिएटिंग ए क्लीन एंड हेल्दी इंवायरमेंट। ये देखो, अप्रोचेस फॉर यूईई। ओके, ये देखो आ गया ना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। Even still today, we are talking in 2025। okay, तो around you can say that 47 में we got independence, तो 53 and 25 77 78 years, हाँ, after the 76 77 years, still guys, okay, we didn't achieve universalizations of elementary education। आज भी हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं, ओके, जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। राइट बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ द राइट्स। अब ये जितने भी कमीशन आए हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, चाहे नंबर 1 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 आया है, चाहे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 आया है, चाहे डीपीईपी की फुल फॉर्म ये है, देखो, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, SSA सब शिक्षा अभियान प्रोग्राम। फिफ्थ क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। सिक्स क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ ए मिड डे मील इन स्कूल। सेवंथ क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये भी स्कीम है, ये स्कीम्स के नाम है। मतलब ऐसे था ना कि कई लोग, कई पेरेंट्स नैरो माइंडेड है, वो बच्चों, अब लड़कियों को ही नहीं भेजते हैं स्कूलों में, तो गवर्नमेंट ने फीमेल से रिलेटेड, गर्ल से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए। राइट और इवन अभी भी है हमारे, देखो, आई एम पुटिंग अप एट चंडीगढ़। राइट चंडीगढ़ के स्कूल्स में आपको मालूम है एडमिशन नहीं मिलती है बच्चों को, क्योंकि चंडीगढ़ 3-4 स्टेट्स हैं चंडीगढ़ के आसपास, चंडीगढ़ के साथ हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, पंजाब भी है ना। सभी चाहते हैं कि भी चंडीगढ़ से हमें एजुकेशन मिले बच्चों को। ओके, तो चंडीगढ़ में बेसिकली मैरिट बनती है, ड्रॉ सिस्टम है यहां पर, मैरिट बनती है। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर रूल है, अगर किसी का ट्विंस है, राइट, एक बच्चे की सिलेक्शन अगर उस स्कूल में हो जाए तो दूसरे की भी सिलेक्शन उसी स्कूल में होती है। राइट हाँ, तो ये देखो, ये लड़कियों के लिए, और लड़कियों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज उनको मिली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस गाइस, तो ये स्कीम्स हैं, ये देखो, बीइंग टीचर, बीइंग, हमें पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, यू आर गोइंग टू बिकम टीचर, यू आर गोइंग टू बिकम प्रिंसिपल।
यू शुड नो अबाउट इट। और आठवां देखो, थर्स्ट फॉर फीमेल लिटरेसी, साक्षर भारत, ये था ना हमारा टॉपिक। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं पेपर थर्ड के, और ये सारे ही टॉपिक्स देखो अब आपको पता लग गया है ना। आप अब इसको होल करके अंडरस्टैंड कर रहे हो। पहले आप सिंगल सिंगल पढ़ रहे थे, अब आपको पता लग गया ये सारे ही टॉपिक्स हैं किस पर्पस के लिए हैं। 8 के 8 टॉपिक फॉर द अचीवमेंट ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, तो वेन एवर यू विल स्टडी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, 86, डीपीईपी, एसएसए, राइट, मिड डे मील, तो इनको आप पढ़ोगे तो इन सभी में यू कैन कम टू नो दैट कि इनका पर्पस है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करना। ओके, उसके लिए उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होंगी, एम्स होंगे, इसी इसी पर्पस को यूईई को अचीव करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या हो गया, यहां पे प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन खत्म हो गया। अब आ जाता है सेकेंडरी एजुकेशन, आगे हम पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जैसे प्राइमरी के लिए रिस्पॉन्स एसएसए था, सेकेंडरी के लिए द यू नो द जो मेन उनका था, जो फ्लैगशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसका नाम था आरएमएसए, राइट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राइट। तो ये मेरे ख्याल से आपको सारा पता लग गया। ये देखो ये सारे के सारे आपने उसी, अब वापस चलते हैं हम अपने नोट्स में ही। ओके, ये देखो एसएससी हम यहां कर रहे थे, यहां से हमें देखो कितना कुछ पता लग गया सारा। ओके ओके, इसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आ गया ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन ये तो पता ही आपको, सिंपल है, राइट। तो ये फिर भी आपको 3-4 लाइंस में ये मैं क्लियर करवा देता हूं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द स्पीड अप ऑफ द मूवमेंट एंड एक्सचेंजेस human beings, goods, services, capital, technologies and cultural practices all over the planet, है ना, यही है ना ग्लोबलाइजेशन। वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट इट प्रमोट्स एन इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड पॉपुलेशंस अराउंड द ग्लोब। तो ग्लोबलाइजेशन यही है ना, कि भाई स्पीड अप ऑफ द मूवमेंट्स, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द नेशनल इंटीग्रेशंस, इंटरनेशनल इंटीग्रेशंस। ओके, तो ये सारा का सारा इट इज रिलेटेड विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हम कहते नहीं है कि भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ये ग्लोब बन गया है ना, इट हैज बिकम ए विलेज। ओके, पर्संस कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजिली, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, यहीं से मुझे एक चीज याद आ गई, आप देखो, आपको मालूम है नवंबर 15 के अंदर, 15 नवंबर 2024, यानी कि आज से एक सवा महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले, ओके, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इलॉन मस्क ने किया था एक्सपेरिमेंट, राइट। अमेरिका का ये पर्सन है इलॉन मस्क, इफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ इलॉन मस्क। ओके, उसने 10 साल पहले ये सोचा था, इलॉन मस्क ने, कहता है जितनी भी कंट्री हैं, मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसा रॉकेट तैयार करूं, ओके, ऐसा स्पेस क्राफ्ट तैयार करूं कि कोई भी पर्सन दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए। और उसने वो रॉकेट को, उसने अपना वो स्पेस क्राफ्ट है वो लॉन्च कर दिया है, और वो सक्सेसफुल हुआ है। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज, यस, 15 नवंबर 2024 की आप न्यूज गूगल के ऊपर पढ़ सकते हो, इलॉन मस्क टाइप करके, यू विल कम टू नो दैट अब कोई भी पर्सन आने वाले टाइम में दिल्ली से अगर वो फ्लाइट करता है, दिल्ली से अमेरिका के लिए, ओके, आधे घंटे के अंदर ही विल रीच अमेरिका, आधे घंटे के अंदर, क्योंकि अमेरिका का डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर। ओके, सॉरी, अमेरिका का डिस्टेंस है 18,000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। और वो जो स्पेस क्राफ्ट है डिजाइन बाय द एलॉन मस्क, ओके, उसको एक्सपेरिमेंट किया, पास हो गया, आने वाले 2-4 साल में लोग, 2-4-5 सालों में अब लोग ट्रेवल कर सकेंगे दिल्ली टू अमेरिका, 1 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएंगे। उसकी स्पीड है गाइस 36,000 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस है दिल्ली से अमेरिका का 18,000 किलोमीटर, तो वो आधे घंटे 35 मिनट में पहुंच गया ना। तो वो आम जहाजों की तरह नहीं जाएगा, तो बेसिकली वो सीधा क्या करेगा, दिल्ली से सीधा आप जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा पहले, ठीक है, सीधा वहां से ग्लोब, वहां से देखेगा अमेरिका कहां पर है, फिर वहां की तरफ लैंड करेगा, उसकी स्पीड इतनी है। तो ये देखो, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है ना, राइट। तो ये देखो, यही हम पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, स्पीड अप ऑफ ए मूवमेंट एंड एक्सचेंजेस ऑफ ए बीइंग, गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं है 2-4 लोग ही जाएंगे, 400-500 लोग इकट्ठे जा सकते हैं, राइट।
और ये देखो हमारी ये एजुकेशन, अभी हम अगर हम बात करें, वी रिस्ट्रिक्ट टू द एजुकेशन, ओके, बिकॉज वी आर डूइंग द एजुकेशन। तो अब देखो, अब जो भी कंट्रीज हैं, है ना, फॉरेन कंट्रीज हैं, ओके, तो हमारी एजुकेशन आप देख लो उनके बराबर आ गई है। तो ये हाउ इट बिकम पॉसिबल, इट बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये जनरल टॉपिक है, मीन्स व्हाट आई वांट टू से दैट, ओके, नोट्स में से तो आप देख ही लो, बट इसके साथ साथ ही यू कैन ऐड द पॉइंट बाय योर सेल्फ ऑल्सो, ओके। तो ये पेपर ऐसा है कि कुछ जनरल टॉपिक्स भी हैं, ओके, तो उसमें आप अपना पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब द हायर एजुकेशन सिस्टम। अब ये देखो, मैंने आपको हायर एजुकेशन समझा दिया था ना, राइट। अब आपको क्लैरिटी हो गई है कि स्कूल एजुकेशन होती है फर्स्ट क्लास से लेके +2 क्लास तक, दिस इज कॉल्ड द स्कूल एजुकेशन। +2 के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी क्लासेस होती हैं वो होती हैं हायर एजुकेशन सिस्टम, राइट। तो ये हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसको आपने वही एक सेंट्रल लेवल पे जो भी मैंने समझाया था वही एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, राइट, कि सेंट्रल लेवल पर देयर इज ए वन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द स्कूल एजुकेशन, द हायर एजुकेशन, सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल के ऊपर बताना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बताना है, ठीक है, फिर आपको गांव, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या स्टार्ट हो गए, विलेजेस हो गए ना, तो विलेजेस के ऊपर बताना है। तो विलेजेस में जितने भी स्कूल्स हैं दे आर रन बाय, कंट्रोल्ड बाय द पंचायत, ओके। तो गाइज यही लिखा हुआ है इसके अंदर ना, इसके सारा का सारा, ये देखो, ओके। चैलेंजेस भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ए हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, राइट, इनरोलमेंट, इक्विटी, क्वालिटी, है ना, उस लेवल पे, क्वालिटी लेवल पे, मतलब वी आर नॉट गेटिंग द हायर एजुकेशन, ओके, टिल टुडे। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, है ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, आप ये देखिए, राइट। फैकल्टी, अभी स्टिल वी हैव ए लैक ऑफ ए गुड फैकल्टी। एक्रीडिशंस, एक्रीडिशंस होते हैं, ये देखो, ये पढ़ ही लो आप एक्रीडिशंस को, ओके। तो अभी देखो, एक्रीडिशन मींस टीम कम, नैक होता है एक्चुअली, NAAC। तो ये नैक, देयर इज ए वन टीम, ओके, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली ही चेक्स द स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ओके। तो उनमें वो चेक करती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, फैकल्टी लेवल कैसे है, कोचिंग कैसे दी जाती है, तो ये सारा का सारा चेक करती है, ओके। तो आप ये देखो, एज पर द, इसको पढ़ो जरा, बहुत ही अच्छा है, एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय द नैक, ये होते हैं नेशनल असेसमेंट एक्रीडिशन काउंसिल, ओके। ये एक्रीडिट करती है आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को। आपने देखा होगा लिखा होता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के आगे नैक A+ है, A++ है। एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय द नैक of June 2010, not even 25% of the total higher education institutions in the country were accredited, and among those accredited, only 30% of the university and 45% of the colleges were found to be quality of be ranked at A level. मतलब इतना बुरा हाल है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का, ठीक है, इनके ऊपर मींस यू नो डेफिशिएंसीज हैं। जब भी वेन एवर the team of a NAC visits the college or university for the accreditation purpose, okay, they found lot of deficiencies, right। और हमारे यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज देखो क्या करते हैं, अब अगले साल आना है उसने, नैक ने उन डेफिशिएंसीज को मतलब कंप्लीट करने की बजाय, डेफिशिएंसीज को खत्म करने की बजाय, मालूम है क्या करते हैं, वो फाइन भर देते हैं। ये हाल है यहाँ का, राइट। रिसर्च एंड इनोवेशन, ये सारे चैलेंजेस हैं, ओके। अब स्टिल वी आर डेवलपिंग नेशन, रिसर्च की तो बात ही बाद में है। अमेरिका वर्गा ही रिसर्च कर सकता है जो 50 साल आगे है हमारे से, 100 साल आगे है ना, पैसा ही इतना है, राइट। हमारे पास पैसा ही नहीं बचता जो रिसर्च और इनोवेशन पे हम खर्च कर सकें। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस ऑफ ए हायर एजुकेशन के हैं, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, राइट, इस क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, सजेशंस क्या है फिर, सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द सिस्टम ऑफ ए हायर एजुकेशन, ओके, ये भी आप डाल सकते हो, ओके। तो सिंपल है गाइस, ओके। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इन इंडिया। तो ये तो सीधा ही इसने पूछ बता दिया कि एक्सप्लेन करो एजुकेशनल स्ट्रक्चर को सेंट्रल और स्टेट लेवल इन इंडिया।
जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके अंदर आप ये देखो, इसको ना क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ना है, ओके, वंस ट्वाइस, सो दैट यू विल कम टू नो दैट। इसने ये पूछा है, डिस्क्राइब द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, है ना। तो हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में पहले आप डिफाइन कर दो हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, राइट। फिर उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस क्या क्या आ रही हैं, फिर कौन कौन से स्टेप्स हैं, ओके, टू इंप्रूव द, टू हायर एजुकेशन सिस्टम, तो उनको आपको डिफाइन करना है। तो जो फिफ्थ वाला आ गया, फिफ्थ में आपको क्या करना है, क्योंकि उसने साफ ही पूछा हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में, एक्सप्लेन दी एजुकेशनल स्ट्रक्चर एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इन इंडिया। इस क्वेश्चंस में अब आपको सेंट्रल और स्टेट लेवल को के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना है, ओके, जो मैंने आपको वो बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में चाहे आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें फोर्थ क्वेश्चन में द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि एक्सप्लेन डिस्क्राइब द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ओके। पर इसमें तो डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं ना कि एक्सप्लेन करो एजुकेशनल स्ट्रक्चर को सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो सेंट्रल लेवल के ऊपर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिफाइन कर दीजिए, अंडर उसके स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन आते हैं, राइट। स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट लेवल कैसे कर रहा है वो सारा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट, स्कूल एजुकेशन को। तो आपने देखा होगा ना, इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, ओके। ओके, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन आ गया हमारा, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एनसीएफटीई। तो पहले तो ना एक बार आपने क्या करना है, इनमें से जितने भी टर्म्स है ना उनको यू कैन, ओके, राइट इट, और उनकी फुल फॉर्म आप लिख लेना, सो दैट आपको सारा पता लग जाए, ओके। एनसीएफटीई को बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ओके। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एसएससी की फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीटीई की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ओके। तो ये सारा एक बार लिख लेना, है ना। तो वो आपको ना टर्म, मतलब इट विल बिकम फैमिलियर, ओके, वंस यू राइट इट एंड यू लर्न इट, ओके, विद इन 10 मिनट्स यू विल लर्न इट, 10 to 15 minutes। तो देन टर्म्स आपको लगेंगे काफी फेमिलियर। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं आपका सिलेबस, ये देखो ये आपका सिलेबस है ना, इन सिलेबस में ये देखिए, राइट। ये देखो यूनेस्को, यूजीसी, न्यूपा, एनआईओएस, आरसीआई, इन सारों को लिख लो, राइट, इनकी फुल फॉर्म एक बार लिख लो, राइट। ये देखो आरटीई, राइट, एसएसए, आरएमएसए, आरयूएसए, आईईडीएस, एसएस, आईईडीसी, इंक्लूसिव एजुकेशन है ये, उससे रिलेटेड है, यूई, ओके। तो आपको थोड़ा सा ना इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको थोड़ा फैमिलियर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि पेपर बहुत ही फैमिलियर है और इजी है पेपर, राइट। आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं इसको। तो हम डिस्कस कर रहे थे हम अपना सिक्स क्वेश्चन, एनसीएफटीई। एनसीएफटीई क्या चीज है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। गाइस एनसीएफटीई टॉक्स अबाउट द टीचर एजुकेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन, ओके। ये देखो ये आपका आ गया क्वेश्चन, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एनसीएफटीई। तो इसमें आपको पहले यू डिफाइन अबाउट द टीचर एजुकेशन, ओके। अब इन टीचर एजुकेशन के ऊपर एक करिकुलम बना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि नेशनल लेवल के ऊपर, है ना, इंडिया में नेशनल लेवल है ना 28-30 स्टेट्स हैं, राइट। एक नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, ईस्ट ब्लॉक है, ओके। अब जहां जहां पर भी बीएड और एमएड के कॉलेजेस हैं, टीचर एजुकेशन कॉलेजेस हैं, जहां पर भी डिप्लोमा इन एजुकेशन है, बीएड है, एमएड है, ओके, और उनका जितना भी सिलेबस है वो बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
नेशनल लेवल के ऊपर उनका जो करिकुलम है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। मतलब यू आर, अभी ये जो हमारा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, है ना, दिल्ली, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ के जो टीचर्स हैं, नॉर्थ के जो बीएड एमएड कैंडिडेट्स हैं, राइट, वट एवर द सिलेबस दे आर लर्निंग, साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ के भी टीचर वही वही पढ़ें कंटेंट। तो एक नेशनल लेवल के ऊपर करिकुलम फ्रेमवर्क हुआ दैट अप्लाइड ऑन द टीचर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, है ना, गॉट द पॉइंट ना, अब समझ आ गया ना आपको। तो उसके फीचर्स हमको लिखने हैं, क्या क्या है। तो ये देखो क्या है, ये एनसीएफटी 2009, ओके, 2009 का लिखना है हमें। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राफ्ट, हाउएवर its sole purpose is to propose any changes or updates that the National Council for Teacher Education requires. Moreover, the National Council for Teacher Education is an Indian government body. तो आपको वो एनसीएफ के बारे में ये सारा लिखना है, उसके सारे फीचर्स लिखने हैं, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। ये देखो, द फोकस ऑफ एनसीएफटी। अब आप इसमें ना पढ़ोगे क्या होगा, इसमें ये सारे रिलेटेड होंगे अपलिफ्टमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन। हमारे टीचर एजुकेशन का क्या हाल है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, इन द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। ओके, सबसे पहले तो यही बात आ गया कि भाई जो करिकुलम है वो मिसमैच है ना, नॉर्थ का साउथ का मिलाएं तो वो सेम होना चाहिए पहले तो, ओके। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, राइट। तो ये सारा अपलिफ्टमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो एनसीएफटीई उसका फीचर्स ये बात करता है। ये देखो, एनसीएफटीई acknowledges the diversity of a learning spaces and curriculum sites apart from the classroom. Shifting towards the use of a critical pedagogy was suggested. अब अगर क्रिटिकल पेडागोजी नॉर्थ के कॉलेजेस में है तो वो साउथ हर जगह पे होनी चाहिए, है ना, उसकी वो बात कर रहा है, क्रिटिकल पेडागोजी की बात कर रहा है, राइट। ये देखो, टीचर एजुकेशन इज ए लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन विच प्री सर्विस, इन सर्विस एंड कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स आर द इनसेपरेबल पार्ट। तो इस ये क्या बोल रहा है, अभी जैसे आप हो, है ना, आप यू आर द बीएड और एमएड स्टूडेंट्स, ओके, आपको यू आर कॉल्ड एज ए बीएड एमएड ट्रेनी, यू आर कॉल्ड एज ए प्यूपल टीचर, यू आर कॉल्ड एज ए प्री सर्विस टीचर। आप अभी प्री सर्विस टीचर हो, यू आर नॉट इन सर्विस टीचर, ओके। आफ्टर डूइंग बीएड और एमएड, व्हेन यू विल ज्वाइन द स्कूल, देन यू विल बिकम द इन सर्विस टीचर। जब आप इन सर्विस टीचर बन जाओगे तो एनसीएफटी क्या कह रहा है कि तब भी देयर शुड बी ए प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द टीचर्स इवन दोज आर इन द इन सर्विस। तभी तो बोलते हैं ना कि बीएड एमएड करने के बाद डोंट थिंक दैट कि भी आपने यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, तो बेसिकली एजुकेशन स्टार्ट्स आफ्टर इट, ओके। बिकॉज टीचिंग क्या चीज है, टीचिंग एक स्किल है, दैट स्किल फेड्स विद द टाइम। तो अब आपका, जब आप टीचर बन जाओगे तब आपका पर्पस क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वहां पर यू हैव टू गो ओवर देयर फॉर विच पर्पस, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल्स, ओके। तो एनसीएफटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन टॉक्स अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, राइट। तो ये सारा है, आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है, ये सारे के सारे यही बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, स्टेट द प्रोविजंस मेड अंडर आरटीआई एक्ट। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गए हैं सारे। आरटीआई एक्ट के बारे में बात करना है। अब आरटीआई एक्ट क्या था, मैंने अभी आपको यूई करवाया ना, यूई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और उसकी सारी अप्रोचेस करवाई। क्या क्या अप्रोचेस थी उसकी, उसकी अप्रोचेस थी एसएसए, है ना, उसकी अप्रोचेस थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 68, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86, डीपीईपी प्रोग्राम, है ना, मिड डे मील स्कीम, है ना, एंड यू नो एसएसए स्कीम, आरटीई एक्ट स्कीम। वो ये सारी क्या चीज है, दैट इज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब हुआ क्या, 2010 है ना ये, ओके, 2010 से पहले 2009 तक 47 के बाद
1947 के बाद 2008-9 तक काफी सारी स्कीम्स निकली गवर्नमेंट की, है ना। काफी सारे कमीशन, काफी सारी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 68, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86, सर्व शिक्षा अभियान, है ना, जो 2001 में आया। किस लिए आया? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स कि एवरी चाइल्ड from the age of 6 to 14 years of age, he should get a free and compulsory education from the schools. अब क्या हो रहा था गाइस? अब कुछ तो स्कूल्स वाले भी दे वर नॉट टेकिंग द इनिशिएटिव। ओके, कुछ बच्चे भी नहीं जा रहे थे। ओके, और कई स्कूल्स भी, प्राइवेट प्लेयर्स हैव कम इन द मार्केट, इन द एजुकेशन मार्केट, राइट। उन्होंने साफ साफ ही मना कर दिया। तो मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि ये तो फंडामेंटल एक्ट है, तो फिर क्या हुआ, हार के 2010 के अंदर एक एक्ट ही बन गया। अब ये कानून बन गया, देखो 2010 का आरटीआई एक्ट। तो ये क्या कहता है आरटीआई एक्ट? द एक्ट इज कंप्लीटली टाइटल्ड विद द राइट ऑफ चिल्ड्रन or children to free and compulsory education act. It was passed in the parliament 2009 when the act came into force in 2010 India this ये क्या कहता है, यहां पे पढ़ते हैं हम। The right of education act 2009, also known as RTI act 2009, was enacted this it describes, ये देखो यहां से, it describes modalities of the importance of free and compulsory education for children aged between 6 to 14 years in India. Under Article 21A of Constitutions of India, it prescribes minimum norms for elementary schools, prohibits unrecognized schools from practice, and advocates against donation fees and interviews of children at the time of admission. The Right to Education Act keeps a check on all neighborhood through regular surveys and identifies children who are eligible for receiving an education but do not have the means to. अब देखो, अगर कोई भी स्कूल मना करता है 6 से लेके 14 साल के बच्चे को, ठीक है, एडमिट करने के लिए और उसको फ्री शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी स्कूल मना करता है, तो उस स्कूल के अगेंस्ट अब एक्शन लिया जा सकता है अंडर आर्टिकल आरटीई एक्ट 2010। अब तो एक्ट बन गया ना, पहले तो मुझे नहीं होता था, है ना। तो 2010 में आरटीआई एक्ट बन गया, राइट। ये देखो इसके प्रोविजंस क्या हैं, आरटीई प्रोविजन, राइट टू एक्ट प्रोविजंस। ये देखो, नंबर 1, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। द बेंचमार्क मैंडेट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल केसेस। डू यू नो दैट हर स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं गाइस, 25% तक उनको सीट्स को रिजर्व रखना है स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल केसेस वाले जो बच्चे होते हैं। डू यू नो स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, स्पेशल केसेस क्या होते हैं? स्पेशल केसेस मींस जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, इधर विजुअली डिसेबल होते हैं, विजुअली डिसेबल होते हैं, विजुअली विजुअली इंपेयर विजुअली इंपेयर्ड। ओके, द करेक्ट वर्ड इज कि उनको थोड़ा कम दिखाई देता है, ओके, पूरा अच्छे से दिखाई नहीं देता, विजुअली इंपेयर्ड और फिजिकली डिसेबल्ड। ओके, तो बहुत सारे ऐसे हैं डिसेबिलिटी वाले, उन सभी बच्चों को बोला जाता है स्पेशल केसेस बच्चे, राइट, स्पेशल चिल्ड्रन। तो उन बच्चों के लिए हर स्कूल्स के अंदर 20 से 25% तक सीट्स रिजर्व करनी है, ये एक्ट कहता है, राइट। नंबर 4, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। आपने देखा होगा ना, पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन हरासमेंट होते थे, 2010 से पहले याद करो, 2010 से पहले आप न्यूज में सुनते होते थे, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बच्चे ने स्कूल के अंदर सुसाइड कर लिया, घर के अंदर सुसाइड कर लिया। तो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ बहुत, बाय द पीयर्स, बाय द टीचर्स। टीचर्स उनको फोर्स करते थे, है ना। तो पीयर्स हैं वो फोर्स करते थे, हरासमेंट होते थे, है ना, ये सब चीजें। तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट, एंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। देखो, ये टीचर का और पेरेंट्स का, दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ऐसा नहीं, मतलब यू नो स्टॉप बोस्टिंग दैट, यू नो
अब आपने देखा होगा उस आज से वही 2010 से पहले जब से ये एक्ट हुआ है ना, तब से थोड़े से स्कूल्स भी ना ठीक हो गए हैं। आपने देखा होगा 2010 से पहले स्कूल्स होते थे, है ना, देवर पोस्टिंग द एडवर्टीजमेंट्स कि हमारा रिजल्ट 99% है जी, स्टूडेंट हैज गॉट द 98% मार्क्स, 99% मार्क्स। अब आप मुझे बताओ, जो बच्चा यू नो हैव गॉट दी 97 98% मार्क्स, तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह पता लगता है कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो हुआ ही है, हाँ, वन एरिया। पर यू नो there is a need for the all round development, there should be a harmonious development। इमोशनली वो स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, एस्थेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ये प्रोविजन है ना आरटीआई एक्ट के अंदर, देखो कितनी नॉलेज मिल रही है, राइट। Ensuring all-round development of a children, improving learning outcomes to minimize detention, monitoring compliance of RTI norms. Right to Education Act is a justiciable, right? And creating inclusive spaces for all. फिर उसके बाद आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ ए आरटीई, राइट। ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिए हैं, ये सारा का सारा गाइस उसी में आ जाएगा, ओके। और देखो 8वां क्वेश्चन ही यूईई पे आ गया। What is the concept of universalizations of elementary education? Discuss the steps taken by the government of India to achieve the universalizations of elementary education। तो यूई पहले डिफाइन कर देना है, फिर डिस्कस द स्टेप्स। स्टेप्स के अंदर वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये वाले जो अभी शुरू में हमने डिस्कस किए थे, ये रे, ये सारे पॉइंट्स, ओके। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके साथ आप ऐड कर सकते हो, आरटीआई एक्ट भी ऐड कर सकते हो, 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट, आरटीई एक्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं 8वें क्वेश्चंस के, राइट। वापस आ जाओ, ये देखो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, और फिर ये स्टेप्स आ गए, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आ गया ना, देखो न्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 68, 86, डीपीईपी, एसएसए, राइट। फिर वो गर्ल्स के लिए है ना प्रोग्राम्स, मिड डे मील, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ओके ओके, थर्स्ट फॉर फीमेल लिटरेसी, ये देखो रमसा भी आ गया। स्कीम प्लान टू 6000 मॉडल स्कूल्स आ गया, प्लान ऑफ वोकेशनलाइजेशन आ गया, प्लान ऑफ आईसीटी, ये देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया ना, ओके। तो ये सारे के सारे स्टेप्स है। और लास्ट क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस द इशू रिलेटेड टू इक्विटी, इक्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट। इक्विटी, इक्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो पहले हम करते हैं इक्विटी एंड इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। बेसिकली याद रखना, इक्विटी जो होती है, इक्विटी लीड्स टू द इक्वालिटी, इक्विटी लीड्स टू द इक्वालिटी। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ऐसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करती है, 1000 रुपया वो देना चाहती है, ठीक है, 1000 रुपया उसने दे दिया। अगर वो 1000 रुपया लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, 1000 रुपया मतलब अभी जैसे इलेक्शन चल रही है दिल्ली के, वो बहुत है ना, तो जो नीडी पर्सन है बेसिकली, राइट, अमाउंट तो उसके लिए होने चाहिए ना, ताकि वो उस लेवल पे तो आए, पहले क्वालिटी वाले उस लेवल पे तो आ जाए जहां पर हम इक्वालिटी कर सकें, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रुपया सभी फीमेल को फॉर एग्जाम्पल दे दिया। अभी ये जो दिल्ली में इलेक्शन चल रही हैं, या कई सरकारें होती हैं, आपको मालूम है ना, व्हेन देयर इज ए इलेक्शन, तो दे यू नो दे से दैट ओके, कि भाई वी आर गिविंग द 1000 रुपीज टू एवरी गर्ल, ओके, अगर हमारी सरकार बनती है तो, है ना, आपने देखा होगा। तो हर 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 लड़की को अगर वो दे रही हैं, ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, जो सबसे नीचे हैं, जो गरीब गरीब है बहुत, राइट, उसको भी मिल रहा है, और जो अमीर है उसको भी मिल रहा है, तो इससे गैप तो बराबर हुआ ही नहीं, राइट। इवन जो सबसे गरीब है, ओके, देयर शुड बी ए वन, एक होना चाहिए ना, पॉइंट होना चाहिए ना, कि भाई अगर जिनकी सपोज करो सैलरी एक महीने महीने में 10,000 से कम है, उनको हम उनको हम दें। अब जो नीचे गरीब है उसको अगर 2000 रुपए मिलते हैं, तो
तभी वो ऊपर वाले लेवल पे आएगी ना, इक्वालिटी वाले लेवल पे आएगी। तो इक्विटी लीड्स टू द इक्वालिटी, राइट। आप ये इसको पढ़ो, ये देखो, ऑल दो इक्विटी एंड इक्वालिटी आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, दे होल्ड डिस्टिंक्ट मीनिंग, particularly in an educational context. Equality implies treating everyone the same, regardless of their unique circumstances and needs. Equality हो रहा है ये. It is a principle of a fairness based on uniform treatment. However, equality might not account for the differing level of advantage or disadvantage among individual or groups. अरे एक डिसएडवांटेज पर्सन है, बहुत ही गरीब है, उसका 1000 रुपए से क्या बनेगा, है ना। पहले वो उस लेवल पे तो आए, राइट, तभी हम इक्वालिटी की बात करेंगे ना। यू गॉट द पॉइंट। तो इसको बड़े माइन्यूटली आप देखना, डिफरेंस है इसमें इक्विटी और इक्वालिटी का, काफी कुछ नीचे दिया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल्स भी दी हुई हैं यहां पर, राइट, इक्विटी एंड इक्वालिटी की। ये देखो मेन डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, राइट। तो ये इसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, राइट। अब इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन एट वेरियस लेवल, राइट, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, तो ये हमें देखने को मिलता है, इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन एट एंड हायर एजुकेशन लेवल आल्सो। द फॉलोइंग आर ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव वेज इन विच इनइक्वालिटीज में अफेक्ट एजुकेशन। इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ठीक है, ये ना अफेक्ट्स करती हैं एजुकेशन को। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बेसिकली ना ये वाई दिस टॉपिक इज फॉर द टीचर्स, ओके, बिकॉज आप ये देखो कि मोस्टली जो टीचर्स भी होती हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यू आर टीचिंग इन योर क्लास इन द 7th क्लास, आपकी 7th क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, जज का, डॉक्टर का बच्चा बैठा है, और एक रिक्शा पुलर का बच्चा बैठा है। तो आपने देखा होगा काफी स्कूल्स में कि इवन टीचर्स है ना, दे स्टार्ट गिविंग मोर अटेंशन टू दी सन ऑफ जज, सन ऑफ डॉक्टर, एज कंपेयर टू सन ऑफ रिक्शा पुलर, है ना। यू हैव सीन ना, इजंट इट। तो बेसिकली इनइक्वालिटी कहां से, जो टीचर्स हैं, टीचर्स आर कॉल्ड द टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी, समाज को राह दिखाने वाले टीचर हैं। अगर टीचर्स के अंदर ये आ गया तो समाज तो अपने आप वैसे जाएगा। क्लास क्या चीज होती है, व्हाट इज ए क्लास? When we talk about 6th class, 7th class, 8th class, do you know what is the meaning of a class? Class, the meaning of a class is a miniature of society. सोसाइटी का हर वर्ग का बच्चा वहां बैठा है क्लास के अंदर। आपकी आपकी क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे बैठे हैं, तो उसमें से बच्चा गरीब भी होगा, अमीर भी होगा, एवरेज भी होगा, हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, हर वर्ग का बच्चा बैठा है। तो क्लास इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। और अगर आप इनइक्वालिटी कर रहे हैं क्लास में, तो यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। गॉट इट। समटाइम्स ना पता नहीं लगता टीचर्स को, ओके, इट हैपन्स, राइट। तो ये जो है ये इफेक्ट करती है एजुकेशन को, राइट। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं गाइस उसी से रिलेटेड, ओके। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस ऑफ ये सारे सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिया इसको, ओके। एक बार आप पढ़ोगे, फिर अगर कोई भी आपको आती है, कोई डाउट्स हैं, ओके, यू कैन डिस्कस विद मी। अदरवाइज ये सिंपल है, आपको सारों को समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे 9th के 9 क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। उसके बाद ये देखो एडिशनल नोट स्टार्ट हो गए हैं, राइट, क्योंकि ये आपकी पीडीएफ फाइल में से ही कर रहा हूं। ये देखो मीनिंग, नेचर, है ना, और फिनोमिना बेस, ये सारा का सारा यहां से कवर अप हो जाता है आपका। ये सारा का सारा, ये सारे वही हैं ऑलमोस्ट जो हमने 9 क्वेश्चंस किए हैं ना, राइट, वही है, उसी से रिलेटेड डिटेल में है थोड़ा सा, सारे के सारे, ओके, अप टू लास्ट तक। ये देखो क्वालिटी ऑफ, फिर लास्ट में अगर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी हमने डिस्कस कर लिया, ओके। एक्चुअली वही 9 और 10 क्वेश्चंस के अंदर आपका सारा कवर अप हो जाता है, ओके। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में अपना सिलेबस और वो चीज, ठीक है। ये देखो, राइट, अब ये देखो एजुकेशन के ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, फिनोमिना, प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, राइट। आप ये देखिए,
ये था ना लास्ट ईयर का पेपर हमारा, ये था हमारा, इसको मैं करता हूँ बड़ा। ये देखो, एजुकेशन एज ए फिनोमिना, है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया। एनसीटी डिस्कस कर लिया, एसएसए डिस्कस कर लिया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिस्कस कर लिया। ओके, एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस एंड फील्ड ऑफ ए स्टडी, हायर एजुकेशन सिस्टम, है ना, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। एनसीटीएफ हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया 2010, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया, और लास्ट नाइन्थ वाला भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, इसमें से ना एक क्वेश्चन यहां पर ये रहेगा था, ये बॉडीज का, एजुकेशनल बॉडीज का, ये आप जरूर करना। ये मैंने बड़ा अच्छा इसका नोट एक बनाया हुआ है, जहां से एडिशनल क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होते हैं ना। दिस इज फॉर, ये देखो, हाँ ये रहे आपके ना, ये वाला पॉइंट्स रह गया था। एस सी आर टी आ गया, एनसीईआरटी आ गया। यस, ये देखिए गाइस, ये यूनिट 2। ओके, ये 4.2 है, ये अंडर एडिशनल नोट्स हैं। ओके, तो ये आपका पूरा टॉपिक कवर अप हो रहा है। ये देखो यूनिट 2 का, नीड, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल बॉडीज, यूनेस्को, यूजीसी, न्यूपा, एनआईओएस, आरसीआई, एनसीईआरटी, एनसीटी, सीबीएसई, एससीईआरटी, डाइट। तो इनमें से कुछ तो हमने कर ही ली है ना। एनसीईआरटी पता है हमें, एनसीटी कर ली है हमने, हमें। ओके, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्निशंस प्रोवाइड करता है। एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ओके, जो बच्चे थोड़े से मतलब कम, थोड़ा सा कमजोर होते हैं, राइट। एनआईओएस में क्या होता है कि सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे वो पास हो सकते हैं। सीबीएसई आपको पता ही है, एससीईआरटी पता है, डाइट पता ही है, राइट। तो ये सारा गाइज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, वन बाय वन। ये देखो, पहले न्यूपा बताया गया है। न्यूपा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या चीज है? नेशनल अपेक्स इंस्टीट्यूशंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा का सारा बताया हुआ है। ये देखो, फिर आ गया हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो आपको पता ही है सारा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज अनदर अपेक्स रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी बुक्स और, है ना, ये सब चीजें हम, राइट। ये देखो क्या क्या एनसीईआरटी करती है। इट डिटरमिन्स द एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, इट प्रिपेयर्स द मॉडल करिकुलम फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इट प्रिपेयर्स द टेक्स्ट बुक्स फॉर द स्कूल एजुकेशन, है ना। एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है करिकुलम के अकॉर्डिंग, एंड वी मोस्टली वी रेफर दैट। फिर एससीईआरटी आ गया, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी की तरह ही वो एससीईआरटी है, वो स्टेट लेवल पे है। तो एनसीईआरटी का पर्पस क्या होता है? एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका पर्पस ये होता है कि जो इन सर्विस टीचर्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ओके, उन एक ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, ये सारा का सारा उनको प्रोवाइड करना। ये देखो, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एक्सटेंशन सर्विसेज, प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल्स, राइट। एस एससीईआरटी, ये ना जेबीटी वगैरह भी करवाती है। बीएड, बीएड भी एजुकेशन प्रोग्राम है, एमएड भी एजुकेशन प्रोग्राम है, जेबीटी भी एजुकेशन प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन एजुकेशन भी एजुकेशन प्रोग्राम है। तो एससीईआरटी, कई स्कूल्स, कई आपने देखे होंगे कॉलेजेस दैट आर एफिलिएटेड विद एससीईआरटी। ओके, ये इन सर्विस टीचर्स के लिए तो प्रोवाइड करती ही है, लेकिन प्री सर्विस टीचर्स के लिए भी कुछ कोर्सेज एससीईआरटी से एफिलिएटेड होते हैं। ओके, जैसे कोई भी कोर्स है हम करते हैं ना, दैट इज एफिलिएटेड विद एमए, बीए वगैरह, है ना, एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी, है ना। तो सिमिलरली एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं एससीईआरटी से। डाइट का भी वही काम होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, एस एससीईआरटी और डाइट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ओके, फिर उसके बाद आ गया आपका सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। तो ये आपको पता ही है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स, है ना, ये सारा का सारा वो करिकुलम है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए सीबीएसई, ये देखो सारा लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। सीबीएसई के बाद आ गया यूनेस्को। यूनेस्को का है फुल फॉर्म, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
है ना, ये आपके लिए नया है। तो ये बेसिकली क्या चीज है, यूनेस्को इज दिस इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन, द साइंस एंड द कल्चर। यूनेस्को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन लंडन 1945, इन 1924 in 1946। तो बेसिकली इसका पर्पस है, ये देखो, इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन। ओके, तो उसी से रिलेटेड ही है गाइस। यूनेस्को का ये देखो लिखा हुआ है विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये देखो एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे। राइट, फिर आ गया यूजीसी। यूजीसी तो आपको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर द इंडिया, दैट उनको जो रिकॉग्नाइज्ड करता है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, फिर उसके बाद आ गया नैक। आ गया नैक, अभी हमने पढ़ा था ना उस क्वेश्चंस के अंदर। ये देखो, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, कोई भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होती है उसमें चेक करती है फैकल्टी, फैकल्टी कैसी है, लर्निंग सिस्टम उनका कैसा है, बिल्डिंग है या नहीं है। फिर अगर सारे पैरामीटर्स पे अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी मीट करती हैं, तो देन उनको असाइंस करती हैं, ये ए ग्रेड है या ए प्लस प्लस ग्रेड है या बी ग्रेड है या सी ग्रेड है। ओके, तो ये असेसमेंट करती है। ओके, मतलब दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम द टीचर आल्सो। ओके, फिर वो मैच देखते हैं मिसमैच तो नहीं हो रहे हैं। तो व्हेन द टीम ऑफ ए नैक एंटर्स इनटू द स्कूल ना, दे टॉक्स विद द टीचर्स, और जो भी टीचर बोलते हैं दे राइट इट, एंड देन गो टू द क्लास, दे आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट। ओके, कि भाई मतलब मिसमैच तो नहीं है। तो उस सारा करने के बाद 3-4 दिन होते हैं, दे स्टे ओवर देयर इन द कॉलेज, इन द यूनिवर्सिटी। राइट, फिर जाकर क्या नाम ना, असेसमेंट उनको प्रोवाइड होती है। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो नैक टीम के मेंबर्स भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं नैक का। मैं भी नैक का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ गाइस। ओके, अराउंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-12। ओके, सो मैं आई वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द नैक वहां पे। तो देर आर 3 persons, 3 or 4 वाइस चांसलर, दे केम इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन था उस, वहां था मैं, आई वाज द नैक कोऑर्डिनेटर, एंड दे केम, और वी गॉट द A+। तो ये सारा का सारा असेसमेंट्स होता है। ओके, जब आप पढ़ोगे आपको भी पता लग जाएगा क्या चीज है ये। NIOS आ गया, ये देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ए ओपन लर्निंग। राइट, ये ओपन लर्निंग स्कीम होती है जिसमें यानी कि बच्चा अपना फर्दर एजुकेशन अपना कंप्लीट कर सकता है अपना, बाय टेकिंग द इजी सब्जेक्ट्स। RCI, हाँ ये RCI था नया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये होती है दैट इज रिलेटेड विद द डिसेबल्ड पर्सन। ओके, जो विजुअली इंपेयर्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ये उनके लिए होती है RCI, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 86। ये देखो इसका पर्पस क्या है, द मेन पर्पस ऑफ दिस काउंसिल इज टू रेगुलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज targeted at disabled, disadvantaged and special education requirement communities। ये देखो, ये 3 पे आपको फोकस करना है, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने। ठीक है, डिसेबल्ड, डिसएडवांटेज एंड स्पेशल एजुकेशन। तो RCI रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट, उनके लिए सारी चीजें प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा ना, अभी स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स भी होते हैं। राइट, मतलब जो लोग डेफ एंड डम होते हैं, आपने देखा होगा वो भी न्यूज दे रहे होते हैं, है ना, विद द फिंगर्स एंड अदर्स। ओके, तो दे आर ट्रेंड, उनको ट्रेंड किया जाता है RCI के द्वारा। बीएड सिर्फ जनरल में ही नहीं होती, आप जो कर रहे हैं बीएड एमएड, इट इज कॉल्ड जनरल। बीएड और एमएड स्पेशल एजुकेशन में भी होती है। तो व्हेन यू डू द बीएड और एमएड इन स्पेशल एजुकेशन, यू बिकम द टीचर ऑफ स्पेशल, यू बिकम द स्पेशल एजुकेटर। ओके, यू टीच टू द स्टूडेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स, जो हु आर डिसेबल्ड, डिसएडवांटेज इन स्पेशल एजुकेशन। ओके, तो वो RCI के थ्रू होती है। राइट, अब तो थोड़ा ये NCTE के अंडर आ गई है। राइट, वो वाली बीएड भी इनके अंडर आ गया, पहले RCI के अंडर थी। पर RCI आपको पता लग गया ना क्या चीज होती है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। राइट, ये सारे के सारे RCI के लिखे हुए हैं। ये देखो, ये मैंने क्वेश्चंस भी एक बनाया हुआ है बहुत बढ़िया, डिस्कस द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये देखिए गाइस, मतलब अलग से अगर क्वेश्चंस भी आ जाए, ये देखो पूरा का पूरा मैंने बनाया हुआ है। ठीक है,
हाँ, ये अब हमारी सारी हो गई हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर, जो हमारी रह गई थी। ये देखिए, ये सारी बॉडीज हो गई हैं हमारी। ठीक है, एजुकेशनल बॉडीज। अब ये सिलेबस को हम देखते हैं। दिस इज आवर सिलेबस, राइट। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर में भी डिस्कस कर लिया, 9 क्वेश्चन से जो 9 क्वेश्चन आए थे उसके अलावा भी। ये सारा हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये भी डिस्कस कर लिया। ये एजुकेशनल बॉडीज भी हमने डिस्कस कर ली यूनिट 2 की। यूनिट 3 में ये एक्ट है, आरटीआई एक्ट वगैरह, ये भी डिस्कस कर लिए। ये 2 एक्ट रह गए डिसेबल्ड पर्संस के। ये सिंपल आप पढ़ लेना, एक एक पेजेस के हैं सिर्फ। पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट, एक दो पेजेस की हैं। राइट ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ओके। अगर क्वेश्चंस आएगा तो सारों को मिला के आता है, राइट। 6 भी हमने कर लिया सारा। नेशनल, ये भी हो गया हमारा। और ये 6 भी हमने कर लिया, नेशनल। इसको हटा देते हैं, अब आ गया ये देखिए। ओके, नेशनल प्रोग्राम स्कीम्स ऑफ एजुकेशन, मिड डे मील, एसएसए, है ना, रमसार, ये भी हो गया। और ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी हो गया। और ये लास्ट में हमारा क्वालिटी इश्यूज इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी हो गए, जो हमने डिस्कस कर लिए थे। ओके गाइज, सो अब ऑलमोस्ट हमारा थर्ड पेपर हमने ना सारा ही डिस्कस कर लिया है हमारा। ओके, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। और इसको आप एक बार गो थ्रू होएं, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, राइट। और इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ऑलरेडी। इसका भी मैंने वीडियो में ऑलरेडी आई हैव सेंट टू यू, राइट। और ये वाला वीडियो भी सून, अप टू नाइट और टुमारो मॉर्निंग ना, आई विल put on the YouTube also, and you will get the soon. Okay guys, thank you so much for this lecture. Thank you.